السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ۔ وقال عز وجل ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، بالخصوص پردہ نشین خواتین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے بہت کم وقت ہمارے پاس ہے، لیکن عنوان بہت گہرا اور اہم ہے۔ مجھے آج کے جلسے کے ذمہ داروں نے جس عنوان کو دیا، میں بہت خوش ہوا۔ اس عنوان پر بات کرنا اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اس پر قائم اور دائم اور ثابت قدم رہنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ پورے ادب کے ساتھ سنیں۔ اور میں عام طور پر ہر جگہ تقریباً یہ کہتا ہوں، مردوں میں بات کرنے سے زیادہ مجھے پریشانی عورتوں میں بات کرنے میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ پردہ ہوتا ہے، اور پردے کا فائدہ جتنا عورتیں اٹھا لیتی ہے، چلو بھائی بولنے والے سامنے نہیں، ہمیں بات کرے آپس میں تو کون دیکھتے۔ اب ہماری تقریر یہاں چلتی ہے تو ان کا بیان وہاں چلتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں کا خاموش رہنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک تو عورتوں کا خاموش رہنا کرامت ہے۔ مردوں کے کرامت کے اظہار کے لیے ہوا میں اڑنا، پانی میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنا، اور بھی طریقے ہیں۔
عورتیں اگر چاہیں اپنا کرامت دکھانا، بہت آسان طریقہ ہے، آدھا گھنٹہ خاموش بیٹھ گئی، وہی اس کی کرامت ہے۔ اللہ کرے کہ ایسی عورتیں عقل کوٹ میں ہوں۔ یہاں زور سے جو مردوں کی آمین کی آواز آ رہی ہے، ان کا آمین کہنا خود بتا رہا ہے کہ ایسی عورتیں یہاں نہیں ہیں۔ غرض میری مائیں، جو درد میں مردوں میں رکھتا ہوں وہ آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا کے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ بند کر دیجیے۔ اور ساری دنیا میں ایک اسلام کو چھوڑ کر جتنی قومیں ہیں، سب کے سب اسلام کے خلاف متفق ہو چکے ہیں۔ اور میدان میں تنہا مسلمان ہے۔ اور مسلمان کا اس ساری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اتنی دشمنی کے باوجود الحمدللہ اسلام زندہ و سلامت ہے۔ اگر یہی دشمنی دوسری قوم والے تمام کے تمام مل کر کسی دوسرے مذہب کے ساتھ کرتے، آج اس مذہب کا نام تاریخ سے مٹ جاتا۔ ارے بس سمجھ میں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں جتنے بھی بیٹھی ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو، اس درد کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور میں یہ بات بڑی اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، 5-10 منٹ میں وہ بھی بتا دوں گا۔ تنہا ہے میدان میں اسلام اور مسلمان، اور اسلام کے ساتھ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا۔ اور اس بات کو ساری دنیا مان چکی ہے کہ ہماری طاقتیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اسلام شروع ہوتا ہے۔ اب تک یہود و نصارہ کو، دشمنان اسلام کو اس بات کا یقین تھا کہ نہیں تھا اپنی جگہ پر، لیکن فلسطین نے اس کا جواب دے کر سمجھا دیا کہ تم کچھ بھی کرو، جب ایک فلسطین مٹا نہ سکے تو اسلام کا مٹا ہو گیا۔ ایک فلسطین دنیا کے نقشے میں ایک نقطے کے برابر ہے بس۔ میں بہت اہم اور بڑی گہری باتیں میری مائیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ کو میں یہ ہوم ورک دے رہا ہوں، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا بن کر، کہ تم یہ باتیں غور سے سن کر اپنے گود میں بیٹھنے والے بچوں کو بتاؤ، تاکہ ابھی سے ان کے دل دماغ کے اندر اسلام مضبوط ہو جائے۔ 20-25 دن پہلے اسرائیل میں ایک زبردست میٹنگ ہوئی ہے۔ اسرائیل نہیں، اسرائیل، اسرائیل ملک کا نام، اسرائیل، ارے بولو بھائی، فرشتے کا نام۔ لوگ اسرائیل کو بھی اسرائیل بولنا شروع کر دیے، نامہ تک مسلمانوں کو پکارنا نہیں آتا۔ اسرائیل ہمارے
इसराइल हमारा नहीं। अक्कलकोट वालों को इजराइल मालूम? आते अक्कलकोट को इजराइल? अरे आते नहीं आते? नहीं आते के तो बोलो, मैं भी अक्कलकोट कुछ आ जाता हूँ। इजराइल तो मुकद्दस फरिश्ते का नाम है। बल्कि उनका काम क्या मालूम? लोगों को मौत के घाट उतारना नहीं है, अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह से मिलाना है। समझ में नहीं बात है? कभी हजरत इजराइल के उन्माद पर ही एक मर्तबा आता हूँ, लेकिन तन्हा मईत बोल को, मईत बेट को मईत बयान करना सुनने वाला कौन भी नहीं रहेगा। उनको डर का मौलाना के बयान में इजराइल के उन्मान में इजराइल भी आ जाते कि वो कर इसराइल। 20-25 दिन पहले मीटिंग होकर यहूदी मजहब का जो बहुत बड़ा आलिम होता है, जो पूरे मजहब को संभालता हुआ चलता है, ईसाइयों में भी एक बड़ा आलिम होता है जिसे पोप कहते हैं, यहूदियों में पूरे उलमा का एक बड़ा आलिम जो होता है उसे हक कहते हैं, और मुसलमानों में पूरे उलमा का कोई एक बड़ा आलिम नहीं होता, क्योंकि हर आलिम नबी का वारिस होता है। उसने बिठाकर मीटिंग करके इस दर्द को रखा, सारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है, हमारे सामने तो अमेरिका भी झुकता है, हथियारात भी हम ही से खरीदता है। इतनी बड़ी ताकत के हम लोग मालिक होकर 8-9 महीने का अरसा गुजर चुका, एक फलस्तीन को हम लोग काबू न कर सके। राज क्या है? तो उन्हीं में का एक आलिम उठकर कहता है, वक्त को बर्बाद मत कीजिए, जवाब देता हूँ कि हमारी ताकतें नाकाम होने का राज फलस्तीन के पास हथियारात नहीं है, लेकिन इस्लाम है। इस्लाम कभी दबेगा नहीं, इस्लाम कभी मिटेगा नहीं, इस्लाम को कोई दबाएगा नहीं, इस्लाम को कभी कोई मिटाएगा नहीं। हाँ, ऐसा भी नहीं कि इस्लाम खत्म नहीं होगा, इस्लाम खत्म होगा। ऐसा नहीं कि इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा, इस्लाम दुनिया से खत्म होगा और सबसे पहले इस्लाम ही खत्म होगा। उलमा जानते हैं, कसीर तादाद में मेरे सामने बैठे हैं, मैं पूरे दलील के साथ बात करूं कि ऐसा नहीं कि इस्लाम खत्म नहीं होगा, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में सबसे पहले दुनिया रुए जमीन में इस्लाम ही खत्म होगा, और जब इस्लाम खत्म होगा तो दुनिया बाकी नहीं होगी, अल्लाह उसी वक्त क़यामत कायम कर देगा। लेकिन अब इस्लाम नहीं मिटेगा, कोशिशें जारी हैं, और एक इस्लाम की खूबी भी है मेरी आपा मेरी बहन, इसे जितना दबाएंगे ये उतना उभरेगा। गेंद के मानो, आहिस्ता डालो उछाल आहिस्ता, जोर से डालो उछाल जोर से। इस्लाम के साथ कम छेड़ो, इस्लाम कम उभरेगा। इस्लाम के साथ जितना छेड़खानी होगी इंशाअल्लाह ताला इस्लाम उतना ही उभरेगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। यहाँ बेशक बोल रहे हैं, यहाँ समझ में आ रहा है। औरतों को शेर शायरी से ताल्लुक है क्या? उनको तो सिर्फ गाने समझ में आते, मौलवी साहब के अशार कहाँ समझ में आते। अभी कल जुमा ही बोला मैं, पार्लियामेंट भी अब मुशायरा खाना हो गया है। इमरान परतागड़ी साहब अशार ही अशार पढ़ रहे हैं, मोदी साहब सो रहे हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा ना।
अशार से भी ताल्लुक रखो। 10-10 घंटे के तकरीर का मगज होता है एक एक मिसरे में। बहुत कीमती शेर मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी बच्चियां तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। तुम हमारी बच्चियां कॉलेज में पढ़ने वाली, अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक अता फरमाए। मैं तो बिल्कुल माहौल में उतरा हुआ हूँ और बाकायदा मेरे पास ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं, हमारी बच्चियों को हमदों से ताल्लुक नहीं, हमारी बच्चियों को नातों से ताल्लुक नहीं, हमारी बच्चियों को अच्छे अच्छे कसीदों से ताल्लुक नहीं, अच्छे अच्छे अशार से ताल्लुक नहीं। हमारी बच्चियों का व्हाट्सएप अगर उठा कर देखेंगे, फेसबुक उठा कर देखेंगे, इंस्टाग्राम उठा कर ये जो नामा बोल रहा हूँ ना, कभी औलिया के नामा नहीं है, वरना तुम्हें समझ जाएंगे। हजरत मौलाना व्हाट्सएप साहब रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत मौलाना फेसबुक साहब रहमतुल्लाहि अलैह, वलिया नहीं है तुम्हारे पास रहने वाले, तुम्हारी इज्जत और आबरू से लेकर तुम्हारे ईमान तक खराब करने वाली चीजें। इसराइल, नसारा, यहूद घरों तक पहुंचकर काम करने का एक तरीका इख्तियार किया है। वो घरों में घुसकर काम करना चाहते थे, और भला कोई गैर आ जाए तो उतना घुसा कर कौन रख सकता है। उन्होंने एक लाही अमल तैयार किया, एक मिशनरी तैयार की। व्हाट्सएप नहीं, यहूदो नसारा की मिशन है वो। फेसबुक एक ऐप नहीं है वो, यहूदो नसारा के एक मिशन है वो। इंस्टाग्राम एक ऐप नहीं है, बल्कि उन लोगों की एक साजिश है जो हमारे घरों तक पहुंच चुकी है, हमारे जेबों तक पहुंच चुकी है, हमारे दस्तरों तक पहुंच चुकी है, हमारे बिस्तरों तक पहुंच चुकी है। अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए, उम्मत की एक एक बेटी की हिफाजत फरमाए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर उठाकर देखेंगे तो फिर इसमें अच्छी चीजें भी हैं, ऐसा नहीं कि 100% गलत है, अच्छी चीजें हैं। अच्छी चीजों को दाखिल करने का मकसद क्या है? हर एक आदमी के हाथ में अपने मिशन को पहुंचाना है। अच्छी चीजें सिर्फ 5 से 10% हैं और खराब चीजें 90 से 95% हैं। अब उठाकर हमारी बच्चियों के व्हाट्सएप को उठाकर देखेंगे और फेसबुक को उठाकर देखेंगे, इंस्टाग्राम को उठाकर देखेंगे, टेलीग्राम को उठाकर देखेंगे, खाली इश्किया अशार, खाली इश्किया अशार, खाली इश्किया अशार। मैं तो बेंगलोर में रहने वाला हूँ, मेरे पास फैसले आते हैं। अभी करीब में 1-1.5 महीना पहले एक नौजवान अपनी बीवी का मोबाइल जब्त करके लेकर मेरे पास आया। हजरत, मैंने अपने आंखों से नहीं देखा कि मेरी बीवी के ताल्लुकात किसी और से हैं, लेकिन उसके मोबाइल के अशआर बता रहे हैं चक्कर कहीं और चल रहा है। मैं बड़ी गहराई में चले जाऊंगा मेरी माए और बहनें, बच्चियां, मेरे पास वक्त कम है आपसे बात करने का, मैं मुकद्दमे में अटका हुआ हूं। अगर तुम अल्लाह की नेक बनना चाहती है तो मैं ये नहीं कहता कि तुम रोज तहज्जुद पढ़ो। तुम अल्लाह की नेक बनना चाहती है, मैं ये नहीं कहता कि रोजाना एक पूरा कुरान पाक मुकम्मल करो। मैं ये नहीं कहना चाहता आपको कि तुम नबी पाक की आशिका बनना चाहती है, रोजाना 1,00,000 मरतबा दरूद पढ़ो। अम्मा आयशा की सच्ची बेटी बनना चाहती है, सईदा फातिमा की बेहतरीन बेटी बनना चाहती है, तो तुम 1000 रकात नमाज पढ़ो, 2000 रकात नमाज पढ़ो। ये कहना नहीं चाहता। इससे आसान अमल शायद कि आप कभी सुनी होंगी। इस दौर में तुम अल्लाह की बंदी, नबी की आशिका, आयशा की बेटी, फातिमा की बेटी, इस्लाम की बेटी अगर बनना चाहती है और वली बनना चाहती है तो अपनी जिंदगी को मोबाइल से बचाओ। आज अगर अपनी जिंदगी को मोबाइल से बचाओगे, कल का सूरत तुम्हारी विलायत का पैगाम लेकर तुलू होगा। आज अगर तुम अपनी जिंदगी को मोबाइल से बचाओगी तो कल का सूरत तुम्हारी विलायत का पैगाम लेकर बनेगा। बल्कि मुझे खुदा की जात से उम्मीद है, ये अल्फाज नहीं, ये तकरीर नहीं, मैं तो तुम्हारे से मोहब्बत भरी बातें अर्ज कर रहा हूँ, दर्द भरी बातें अर्ज कर रहा हूँ। अगर तुम सिद्क़े दिल के साथ मोबाइल से उतना ही रिश्ता रखो जितना तुम्हारी जरूरत है, उसके बाद उससे तुम अपना रिश्ता काटोगी तो मुझे उम्मीद है उसी रात शायद हो सके सैयदा आयशा की ख्वाब में जियारत हो जाए, सैयदा फातिमा का दीदार हो जाए तुमको।
तुम्हारे तकवे के लिए रुकावट अमेरिका नहीं है, तुम्हारे तकवे के लिए रुकावट इसराइल नहीं है, तुम्हारे तकवे के लिए रुकावट बाहर का माहौल नहीं है। बाहर का माहौल किस जमाने में खराब नहीं था? बाहर का माहौल अगर अच्छा था तो सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी के जमाने में अच्छा था। आका ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, मेरा जमाना बेहतरीन जमाना है, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बाद का जमाना बेहतरीन जमाना है, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बाद का जमाना बेहतरीन जमाना है। ये तीन जमानों से पहले न जमाना अच्छा था, न ये तीन जमानों के बाद जमाना अच्छा है। अब एक ही जमाना अच्छा आने वाला है, वो हजरत मेहदी व ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, जिसकी बशारत नबी ने दी है। इतना अच्छा जमाना आएगा, बरकतों से लबरेज, रहमतों से लबरेज ऐसा जमाना आएगा। हदीस पाक में आता है वो आकर काम दावत तबलीग का मुकम्मल करके सारे आलम में अमन कायम करेंगे। अल्लाह ऐसी रहमतों और बरकतों को नाजिल करेंगे, एक अनार एक जमात के लिए काफी हो जाएगा। जमाना तो हर जमाने में खराब था, जमाना हर जमाने में खराब था। मैं तो मौलाना मुझे इजाजत दीजिए, उलमा बैठे हैं, मैं तो पूरे जज्बे के साथ कहता हूँ माहौल अच्छा हो मंजिल तक पहुंचना कमाल नहीं, माहौल खराब हो बचकर मंजिल तक पहुंचने वाला ही अल्लाह का वली होता है। हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। अब अशार भी पढ़ना, तर्जुमा भी करना, समझाना, जरा शॉर्टकट बाईपास में चल जाता हूँ, हाईवे में चल जाता हूँ, वक्त नहीं है, क्योंकि एक अहम पैगाम इन तमाम बातों का मुझे आपके सामने देना है। अगर मुझे इतनी तादाद में औरतें, मेरी माएँ और बहनें अक्कलकोट के आने का इल्म होता तो मैं ज़ोहर के बाद जो आराम किया वो भी कुर्बानी देकर आ जाता। अजहर साहब आप भी नहीं बताए मुझे, 3:30 के बजाय 2:30 बजे से हो जाना था, तब 4:30 को बात खत्म करना है। समझ में आई बात है? अब ट्रीटमेंट 1-2 टैबलेट से नहीं होगा, एक ज़बरदस्त ऑपरेशन की ज़रूरत है। समझ में आई बात? 1-2 टैबलेट 1-2 इंजेक्शन से ट्रीटमेंट नहीं होगा, एक ज़बरदस्त किसकी ज़रूरत है? ऑपरेशन की ज़रूरत है। आधा पौना घंटा दस्तर का हक अदा नहीं होता तो जलसे का हक अदा क्या होगा? फिर भी चलो अल्लाह बरकत दे दे। हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। माहौल तो खराब है, माहौल खराब है, माहौल को कुछ न कहो, कभी माहौल अच्छा नहीं था, लेकिन तुम अपने हद के माहौल को पाक कर लो, अपने हद के माहौल को पाक कर लो। मेरी माँ और बहनें, तुम अपने आप को अल्लाह की बंदी बनाना चाहती हो, नबी की आशिका बनना चाहती हो, आयशा की बेटी बनना चाहती हो, सैयदा फातिमा की लाल बनना चाहती हो, इस्लाम की बेटी बनना चाहती हो, तो इस दौर में तुमको आसान अमल क्या है कि बड़ी बड़ी और लंबी लंबी नमाजें नहीं, 5 वक्त ही की नमाज पढ़ो, हफ्ते महीने में 1 मरतबा ही तहज्जुद पढ़ो, हराम से बच जाओ, कुरान पाक की मुख्तसर सूरतें या पाउ पाउ आधा आधा पारा रोजाना की तरतीब ही रखो, इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ तादाद और गिनती के मुताबिक ही करो। लेकिन एक अमल क्या, मोबाइल से अपनी जिंदगी को तुम जितना बचाओगी, तुम्हारे माहौल को गंदा करने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा माहौल पाक। आज देखने में आता है अक्कलकोट का क्या हाल है मालूम नहीं, कि छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में लाखों के मोबाइल,
خدمتوں کے وظیفے موبائل کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ اینیورسری میں میاں بیوی ایک دوسرے کو تحفہ دیتے تو کم سے کم سونا چاندی روپیہ کپڑے شاپنگ وغیرہ کر، اینیورسری کا تو معلوم عقل کوٹ میں نہیں معلوم کہ کس کی بھی شادی نہیں ہوتی کیا یہاں، کرنا تو نہیں ہے لیکن کرتے لوگ اپنی جگہ پر اینیورسری، تب بھی وہ ایک محبت، چلو بھی کیا ہونا تمہیں زیور دلاؤ یہ دلاؤ، اب نہیں، اینیورسری میں کیا ہونا کا تو سب سے پہلے اس کے زبان سے نکلتا تو کیا یہ موبائل میں ہینگنگ پرابلم ہے، آپ ایک اچھا اینڈرائڈ بہترین موبائل، تو ہینگ ہوگی ہے موبائل پر الزام لگاتی ہے، تیرے کاما ہینگ ہو گئی، تیری نماز ہینگ ہو گئی، تیرا پردہ ہینگ ہو گیا ہے، تیری اچھی زبان ہینگ ہو گئی، تیری نگاہ ہینگ ہو گئی ہے، تو الزام موبائل پر لگاتی ہے۔ اللہ اکبر، کون کی گڑگے کو مارا تو ہم کیا پھٹے گئے، مارا تو گھٹنے کو پھٹے سو آنکھیں، ایسا نہیں آپا، تیرا سسٹم اچھا ہونا، تیرا سسٹم اچھا ہونا، تیرے ادب کا سسٹم اچھا ہو، تیرے اخلاق کا سسٹم اچھا ہو، تیری خدمت کا سسٹم اچھا ہو، تیرے پردے کا سسٹم اچھا ہو، تو گھر کی رابعہ بن جا، تو گھر کی عائشہ بن جا، تو گھر کی فاطمہ بن جا۔ حالات بہت خراب ہیں، حالات بے حد خراب ہیں، باہر تم نکلتی نہیں، نکلنے والوں کو باہر کے حالات نظر آتے نہیں، ہم لوگ باہر رہتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حالات دیکھنے کا موقع ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ایسے حالات میں میں اب اصل بات تمہارے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تمہارا نیک بننا مردوں کے نیک بننے سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ میری بات کو آپ آواز کے ذریعے سے نہیں، تحریر کے ذریعے سے بھی پوچھو گی تو میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ حالات کو سنوارنے اور اسلام کے احکامات و شریعت کو بچانے کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، ہمارے نبی کی امانت کی حفاظت کے لیے مردوں سے زیادہ عورتوں کا بدلنا بے حد ضروری ہے۔ اب کیوں اگر یہ سوال آتا ہے اس کا جواب دیتا ہوں میری مائیں اور بہنیں، سنو، عورت جب بدلتی ہے نا، خدا کی قسم اللہ تعالی اچھے حالات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک کیوں پیدا ہوتا ہے، وہ کیوں جب عورت بدلتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پیٹ سے جن بچوں کو پیدا کرتے ہیں ان میں سے کوئی حسن زمانہ ہوتا ہے، زمانے کا حسین ہوتا ہے، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ خالد بن ولید بن جاتا ہے اپنے زمانے کا، صلاح الدین ایوبی بن جاتا ہے اپنے زمانے کا، ٹیپو سلطان شہید بن جاتا ہے اپنے زمانے کا۔ جب عورت نیک بن جاتی ہے تو پھر اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ زمانے کا ابو حنیفہ بن جاتا ہے، زمانے کا شافعی بن جاتا ہے، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ زمانے کا قاسم نانوتوی بن جاتا ہے، بایزید بستامی بن جاتا ہے، سفیان ثوری بن جاتا ہے، اللہ اکبر، فرید الدین شکر گنج بن جاتا ہے، اللہ اکبر، مختار کاکی بن جاتا ہے۔ میں تقریباً 200 سے زیادہ نام یاد کر کے رکھا ہوں جن کی ولایت کے پیچھے اللہ کے فضل اور نبی کی نسبت کے بعد ان کے ماؤں کے تقوی کا راز ہے۔ آج کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے؟ اسی لیے دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اسلام کو ماننے والے جو انسان ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، علماء یہاں بیٹھے ہیں، پھر بات آئے گی کہ نہیں آئے گی، آپ حضرات بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ 2 قسمیں ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے عورتوں پر محنت کرو، اور عورتوں کی محنت کیسی،
عقیدے سے لے کر اعمال تک، اعمال سے لے کر شرم اور حیا تک، پہلے ان کو خراب کرو۔ توجہ چاہتا ہوں حضرت قبلہ، توجہ چاہتا ہوں، آپ بزرگوں کی دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے۔ میرے پاس پورا ریکارڈ ہے میرے پاس، یہ کیسے کیسے جملے اللہ تعالیٰ ان کے زبان سے نکال رہے ہیں۔ سادہ سیدھا انسان پڑھتا ہے تو ڈر ہوتا ہے، پڑھا لکھا آدمی پڑھتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دشمنوں نے کہا اپنی جماعتوں میں، اپنی میٹنگوں میں، ارے اس قوم کے گنہگاروں کو ہم دبا نہیں سکتے، اس قوم کے گنہگاروں کو ہم دبا نہیں سکتے، تو اس قوم کے نیکوکاروں کو کہاں دبا سکتے؟ اس قوم کے بچوں سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، اس قوم کے جوانوں سے ہمارا مقابلہ کیا ہوگا؟ اتنا ماحول خراب کرو اور اتنے عقیدے خراب کرو، ان کے اعمال کے پیچھے ہماری مشنریوں کو لا کر اتنے داخل کرو، فیشن، حسن، زیب و زینت کے نام پر ان کے سامنے ہماری بے حیائی اور بے پردگی کو اتنی داخل کرو، اتنی داخل کرو کہ اس کے بعد کبھی اس قوم میں حسین جیسا بچہ پیدا نہ ہو، حسن جیسا بچہ پیدا نہ ہو، صلاح الدین ایوبی جیسا بچہ پیدا نہ ہو۔ اب ایک سوال آپ تو کر سکتی ہے، کلکوٹ کی عورتیں پڑھی لکھی ہے کہ نہیں؟ پڑھی ہے نہیں پڑھی نہیں؟ پڑھو، پہلے دین پڑھو، اس کے بعد آپ جو پڑھنا ہے وہ پڑھو، ایس ایل سی پڑھنا ہے، پی یو سی پڑھنا ہے، فرسٹ ایئر پڑھنا ہے، سیکنڈ ایئر پڑھنا ہے، ایم بی اے پڑھنا ہے، بی اے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے پڑھو، لیکن پہلے دین پڑھو۔ سمجھ میں یہ بات؟ دین کے بغیر دنیا کا علم، پڑھی لکھی آپ ایک سوال کر سکتی ہیں، کیا حضرت ہمیں خراب ہو گئے تو بچے خراب؟ تمہیں الزام لگا رہی حضرت، میری اردو سمجھتے ہیں یہاں پر؟ نہیں، پیور اردو میں بات کروں، سمجھ رہے؟ پیور اردو میں بھی بات کرتا ہوں الحمدللہ، سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ارے عورتوں کی طرف سے تمہیں فرض کفایہ بنو، منڈی ہلاؤ، اب میں کہاں ان کو منڈی ہلاؤ بولوں؟ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اب عورتیں پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت بچے پیدا ہونے کے لیے ہمیں کیسے ذمہ دار؟ مرد ہی تو ذمہ دار ہے، خون ان کا ہے، خطرہ ان کا ہے، ہمیں تو خدمت گزار ہیں، رکھ کر دیتے ہیں، خون ان کا ہے، مشقت ہم اٹھاتے ہیں، اور اب پورا الزام آپ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں۔ سوال تو صحیح ہے آپا، میرا جواب انشاءاللہ تعالیٰ تیرے سوال کو تسلی بخشے گا۔ ایک مثال کے ساتھ میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا گھر کا مرد، شوہر، باپ، بھائی، کوئی بھی ہو، دودھ لے کر آیا، دودھ معلوم؟ ارے دودھ پیکٹ میں دودھ لے کر آیا، لا کر دیا، صبح صبح دودھ، ہمارے بنگلور میں صبح صبح دودھ آتا ہے، یہاں پر صبح ہی آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، دودھ لا کر دیتا ہے۔ اب دودھ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، فار ایگزامپل، اب اس دودھ کو حفاظت کے لیے رکھتے کہاں ہے؟ عقل کوٹ میں فریج ہے؟ ارے واہ 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 واہ، جتنی بد دعا فریجوں کو غریبوں کی لگی ہے اتنی تو فرعون کو بھی نہیں لگی ہے۔ اب حفاظت کے لیے دودھ کو کہاں رکھتے ہیں؟ فریج میں رکھتے ہیں، اب فریج میں بھی فریزر میں رکھتے ہیں، فریزر میں رکھتے ہیں، اور جب تک فریج صحیح ہو، فریج کا فریزر صحیح ہو، کرنٹ برابر پاس ہوتا ہو، 1 گھنٹہ ہی نہیں
एक महीना भी उसमें अगर दूध रखेंगे खराब होगा दूध? नहीं होगा। जरूरत ही पेश नहीं आई, कोई मेहमान भी नहीं आया, और आज के जमाने में आता भी नहीं। ठीक है, तो पूरी खैरियत मोबाइल में पूछ लेते हम लोग। हाँ, पूरी खैरियत हम लोग क्या करते, मोबाइल में पूछ, कैसे ही आपा खाला, कैसे अच्छी हूँ, तुम्हें कैसे ही अच्छे ही, याद आए बोलकर फोन कर ली। अच्छा, मंजे भी तुम्हें याद आले करते, करना बोलकर थी तुम्हें कर डाले। अच्छा, देखना देखना बोल को दिल चाह रहा है, तो फौरन आ जाओ बोलते नहीं, वीडियो कॉल करो। चल रहा नहीं चल रहा है? देखना बोलकर आंखें तड़प रही, अब तो मैयतों का दीदार भी वीडियो कॉल में हो रहा है। अब तो मैयतों का दीदार भी वीडियो कॉल में हो रहा है। मैं जब इंशाअल्लाह मुल्क का पीएम बनूंगा, सबसे पहले इंटरनेट खत्म कर दूंगा। देखो कौन भी आमीन नहीं बोल रही। ठीक है, तो सबको डर है, इन्हें बनिया तो करता। इंशाअल्लाह हम न सही वक्त आएगा, इस मुल्क को संभालने वाला फिर से औरंगजेब का कोई वारिस पैदा होगा, जरूर पैदा होगा। ये मुल्क इतना बड़ा महान मुल्क क्या चाय वालों से चलेगा? ये टोपी और दुपट्टे वालों से चलेगा? ये समझ में आई बात? मेहमान आता च नहीं। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस घर के अंदर मेहमान आता है समझो कि उस घर पर अल्लाह की नजर ज्यादा है। हम लोग बुलाते भी नहीं, हम लोग जाते भी नहीं। इतने घरों में दूरियां हैं मेरी माए और बहने। हम लोग तो जंगल के जानवर बनना था, इंसान बन गए। घरों में सिर्फ सोफे, ड्रेसिंग टेबल और दूसरे तमाम चीज़ें ही। घर में ना इत्तेहाद है, ना इत्तेफाक है, ना प्यार है, ना मोहब्बत है। एक जमाना घरों में शादियों का आम दिनों में माहौल होता था, अब तो शादियों के अय्याम में भी घर उजड़े उजड़े नजर आते हैं। मैयतों के माहौल में भी घर उजड़े उजड़े मालूम होते हैं। मैयत की खबर सुनकर आते हैं, जनाजा उठते ही सब ताजियत अदा करके चले जाते हैं। मैयत जिस दिन उठती है, जनाजा जिस दिन होता है, उसी दिन 2-3 घंटे के बाद पूरा घर नॉर्मल हो जाता है। दूरियां दूरियां इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। सड़कों पे उजाला है, कल्बों में अंधेरा है। सड़कों पे उजाला है, कल्बों में अंधेरा है। दिल वीरान हो गए, अंधेरे हो गए, मेहमान आता नहीं। अब दूध 1 महीने तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ, चाह की जरूरत तो चाहत भी नहीं हुई। और जब फ्रीजर से दूध की पैकेट निकालेंगे, दूध सलामत रहता है कि नहीं रहता है? हालांकि दूध 1 महीना रहने वाली चीज नहीं है। दूध 1 महीना रहने वाली चीज नहीं है, 1 दिन भी सलामत रहने वाली चीज नहीं है। मैं भी क्या आसमान से आया? मैं भी घर के माहौल से अपना हूँ। एक जमाने में बराबर बोलते थे, रात को सोते वक्त बाकी दूध को गरम कर को सोमा दूध बोलते थे। गरम कर को सोमा दूध बोलते थे। दूध को बार बार गरम करके रखते थे।
और दूध का बर्तन बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक कतरा गंदी चीज भी पूरे दूध को गारत करके रख देता है। दूध सलामत रहने वाली चीज नहीं है, इस्तेमाल कर लेना। अब फ्रिज के अंदर 1 महीना सलामत कैसे दूध, एक महीना दूध कैसे सलामत? फ्रिज अच्छा है, करंट पास हो रहा है, तो इसलिए दूध सलामत है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरी आपा, अच्छी औलाद पैदा होने का राज खून का खतरा नहीं, तेरा पेट है। तू अच्छी हो, तेरे अंदर तकवा हो, तेरे अंदर पर्दा हो, तेरे अंदर तिलावत हो, तेरे अंदर अदब हो, तेरे अंदर शर्म हो, इंशाअल्लाह ताला ये 9 महीने जो पेट में खतरा रहता है, जिसको बनाता अल्लाह तबारक व ताला है, और उसको अल्लाह ताला फी ज़ुलुमातिन सलास, कुरान में है नहीं, बच्चा बनने की जो थैली है, उस थैली को कुरान ने क्या कहा? फी ज़ुलुमातिन सलास। इसी का नाम है फ्रीजर। इसी का नाम क्या है? फ्रीजर। वहां रखकर बनाता है। जब माँ का सिस्टम सलामत रहता है, 9 महीने तक बच्चा जब अंदर बन जाता है, तो फिर बाहर निकलकर कोई माहौल बच्चे के ईमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी माए, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इस पुरफितन दौर में चारों तरफ हमले हो रहे हैं, और हमलों के शक्ल में तुम्हारे सामने बताने का वक्त नहीं रखता। पक्के पहले मुसलमान बन जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रहो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर साबित कदम रहो। आज क्या कहें, हमारा कलीमा आज तक महफूज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुदाखलत होती है, कबूल मुसलमान कर लेता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुदाखलत होती है, मुसलमान कबूल कर लेता है। यहाँ तक कि औरतें भी इस साजिश में मुब्तला हैं। मैं हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम तर रियासतों का दौरा करता हूँ, जहाँ अकीदों के बदलने में मर्दों की बात आती है, वहाँ औरतों की बात भी आती है। बल्कि दुश्मन ने सबसे ज्यादा औरतों के अकीदे बदलने के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ही सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम अगर यहाँ खराब हो जाए तो इसके माहौल में रहने वाले तमाम सिस्टम खराब हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुदाखलत मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुदाखलत मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, मर्द बर्दाश्त कर रहा है, औरतें बर्दाश्त कर रही है। मेरी माए और बहनें, अक्कलकोट के अंदर दावत व तबलीग के अगर इज्तिमाआत होते हैं, आप वक्त बनाकर जरूर जाओ और बैठो। बाहर से उलमाए किराम आते हैं, वो भी उलमाए हक आते हैं। आप अपने कामों को आगे पीछे करके जाओ और बैठो। और भी शहर के उलमाए किराम अपने अपने मोहल्ले में निज़ाम बनाते हैं। अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि उनके निज़ाम में जाकर बैठो, तकरीरें उलमाए किराम की सुनो। एक नई बात जो आप आज तक कभी नहीं सुने, ऐसी बातें अगर आती हैं तो फिर उसको सही करने के लिए उलमा तक आप राब्ता कायम करें। बाप को वास्ता बनाकर, भाई को वास्ता बनाकर, शौहर को वास्ता बनाकर, बेटे को वास्ता बनाकर। वरना याद रखो, मर्दों से मैं कहता हूँ, आज तुम्हारे से कहना पड़ता है, तुम काबतुल्लाह के खिलाफ को ये जुमला याद रखना, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जुमला तुमको समझ में आ जाएगा। तुम काबतुल्लाह के खिलाफ को बुर्का बनाकर इस्तेमाल कर ले, अगर तुम्हारा अकीदा सही नहीं, उस बुर्के के अंदर रहने वाली औरत का ईमान सलामत नहीं रहेगा। समझ में आई बात है? अकीदे अच्छे रखो, आमाल अच्छे रखो, नमाजों की पाबंदी करो। बगैर क्या हो रहा अभी, बंद करो, क्या है मौलाना आप ये ऐसा कर रहे थे? अकीदे अच्छे रखो, आमाल की पूरी पूरी हिफाजत करो, एक वक्त की नमाज न छोड़ो, और एक वक्त एक दिन तिलावत न छोड़ो। सुबह शाम इस्तगफार और दुरूद पाक की कसरत, अल्लाह का जिक्र करते रहो। बगैर किसी शरई जरूरत के तुम्हारा कदम घर से बाहर ना पड़े, ये फितनों की जड़ है। मर्द बाहर जाता और आता, उसका वो निजाम है।
औरत अगर बाहर जाकर आती है तो खुद इमाम गज्जाली ने लिखा है कई मर्दों का ईमान खतरे में पड़ जाता है एक औरत के बाहर जाकर आने पर। इसलिए अपने माहौल को पाकीज़ा बनाओ, अदब अखलाक से रहो, सब्र अपने अंदर पैदा करो, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करो, दर गुजर करने का मिजाज अपने अंदर पैदा करो। मैं तमाम उन्वानात का हेडलाइन तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। ऐसी जिंदगी करो, ऐसी जिंदगी करो कि तुम्हारे घर के मर्दों को मरने के बाद जन्नत का मजा नहीं, जिंदगी में तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे माहौल और तुम्हारी जिंदगी के साए में जन्नत का मजा मिले। आज मैं हजारों मर्दों की जिंदगियां बता सकता हूं कि वो रोड में वक्त गुजारना चाहते हैं, होटलों में वक्त गुजारना चाहते हैं, इधर उधर दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। जब उनसे कहा जाता है घर को जाओ तो वो कहते हैं कि नहीं हजरत, घर को जाना मेरे अपने सुकून को बर्बाद करने के बराबर है। अरे भाई मेरी बहनें, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम घर के अंदर गुजारोगे उतनी ज्यादा तुम्हें आफियत मिलेगी। और इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि फिक़ह में साफ लिखा है फराइज मसाजिद में पढ़ो, सुनन और नवाफिल घर के अंदर पढ़ो। इसका मतलब मस्जिद को आओ, फर्ज पढ़ लो, फिर अब घर को चले जाओ। सुन्नत भी अगर पढ़ना है तो अपने घर के अंदर पढ़ो। क्या वो अल्लाह जो फर्ज मस्जिद में पढ़ने का हुक्म देता है सुन्नत मस्जिद में पढ़ने का हुक्म नहीं देगा? नवाफिल मस्जिद में पढ़ने का हुक्म नहीं देगा? घर में पढ़ने का हुक्म इसलिए दे रहा है, इसके दो फायदे हैं। एक फायदा कि नमाज पढ़ने से तुम्हारा घर भी मस्जिद का माहौल बन जाएगा, दूसरा घर वालों के साथ वक्त ज्यादा गुजारने का मौका मिल जाएगा। हमारे घर के मर्द हमारे घर में दिलचस्पी के साथ अगर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना है तो हमको वैसे ही बाअखलाक बनकर भी जिंदगी गुजारना है। लेकिन मेरी माए और बहनें, मुझे माफ फरमा दे कि तुम्हारे दर्द को मैं कितना बयान करूं कि तुम लोगों ने माहौल को इतना खराब कर रखा है कि घर के अंदर मर्द का सिवाय रात के 4-5 घंटे के अलावा मजीद वक्त गुजारना जहन्नम से बदतर हो चुका है। तुम अच्छे बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे घरों से इनखिलाफ का फैसला करेंगे। अकीदे अच्छे रखो, अकीदे। वक्त होता तो मैं अपने मुकद्दमे को यहाँ तक लाकर जोड़ता। दुश्मनों ने प्लान बनाया है जितना हो सके इस्लाम के मर्दों को जान से मारने की कोशिश करो, औरतों को मत मारो बल्कि उनके अकीदे खराब कर दो, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ मरने से उतना नुकसान नहीं आएगा जितना तुम्हारे अकीदे खराब होने से नुकसान आएगा। कादियानी फितनों में औरतें मुब्तला है, शकील बिन हनीफ के फितने में औरतें मुब्तला है। गौहर शाही कहते, उन्हें गौहर शाही नहीं गोबर शाही। औरतें मुब्तला, शर्म आती है, अफसोस होता है। इतनी बड़ी दौलत हमारे पास है ईमान, इसकी कदर कब मालूम होती? मालूम कब? कब जरा बोलिए। इधर जिस्म से रूह का रिश्ता कट होते ही 1 सेकंड भी नहीं गुजरेगा, उससे पहले ईमान की कदर मालूम हो जाएगी। कट होते ही, कट होती। लोग बोलते खबर को गए तो मालूम होता, असर में मालूम नहीं, मरते ही मालूम हो जाता। हमारे पास घरों की शक्ल में जो दौलत थी वो दौलत, या ईमान की शक्ल में जो दौलत थी वो दौलत, इसका नतीजा निकलेगा मरने के 1 सेकंड के बाद। इंशाअल्लाह फिर कभी मुझे मौका मिले तो मैं ज़्यादा वक्त के साथ आपके साथ बैठूंगा। मुझे उम्मीद है कि बात को समझी भी होंगी और इंशाअल्लाह ताला अमल भी करेगी। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी कुछ मस्जिद, मस्जिद का नाम, मस्जिद का जी। माँ और बहनों की खिदमत में एक गुजारिश आई है और इंशाअल्लाह ताला ये गुजारिश काबिल कबूल भी है। आजकल पैसा है ना, काला धन,
वो मर्दों से ज़्यादा औरतों के पास है। समझ में आई बात है? तो ये काला धन नाजायज पैसे ही को नहीं बोलते, समझ में आई बात है? एक छुपे हुए पैसों को कहा जाता है काला धन। हुकूमत क्या कहती है माँ और बहनों को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए आगे मैदान में आना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरतों में चंदा होता था। क्या मौलाना? बुखारी शरीफ की रिवायत है नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को भेज कर दीनी मसाइल के हल के लिए चंदा वसूल करते थे। यहाँ तक कि सैयदुना बिलाल कहते हैं कि चादर फैलाई जाती तो औरतें दिरहम और दीनार के साथ साथ अपने जेवरात तक डालते थे। सुभान अल्लाह। इस इस हदीस से ये भी मतलब निकलता है कि जेवरात नया सिस्टम नहीं है, हर दौर में औरतें जेवर पहनती थी। तो आप भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए आगे बढ़े। एक अच्छा मौका माँ और बहनों के सामने इस वक्त आया है। शोलापुर में एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम मुझे बहुत पसंद आया, मस्जिद खातमुन नबीयीन। बहुत प्यारा नाम है, समझ में ही मत। खातमुन नबीयीन मेरे आका की खास सिफत है। इस सिफत में तो कोई नबी भी शामिल नहीं। खातमुन नबी। और इस नाम से एक मस्जिद तामीर हो रही है। आज सुबह को मैं वहीं पहुंचा, सबसे पहले हाजिरी दिया मस्जिद में। और एक बहुत बड़ी जगह खरीदी भी जा रही है, क्योंकि मस्जिद की जितनी जगह है उतनी जगह काफ़ी नहीं है, क्योंकि मस्जिद के साथ साथ वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का भी एक बेहतरीन काम हो रहा है और आगे होना भी है। मज़ीद 5000 स्क्वायर फीट बाजू की लिए हैं। एक स्क्वायर फीट की कीमत 1200 रुपये, 1200 रुपये है, और एक मुसल्ले की कीमत 6000 रुपये है। और इतनी औरतें माशाल्लाह आई हैं, रसीदें भी रखी हुई हैं और चादर भी बिछाई गई है, जाते बाक्स भी रखे हैं। माँ और बहनों से गुजारिश है, खुद की तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, दादा दादी नाना नानी की तरफ से 1200 रुपये या 6000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला एक स्क्वायर फीट का बदला अल्लाह ताला जन्नत में पूरे महल की शक्ल में देगा। क्योंकि मस्जिद ही ऐसी चीज़ है, पूरी मस्जिद बनाएंगे तब भी पूरा महल मिलेगा, एक छोटा सा स्क्वायर फीट का टुकड़ा भी लेकर देंगे तब भी अल्लाह ताला पूरा महल अता फरमाते हैं। ज़रूर अमल करे, कोई खाली हाथ न जाए, जितनी अपनी ताकत है मस्जिद का ताउन करते हुए जाए। आप